Very good morning to all of you. So in previous class we have completed a topic, that is what are the human or individual objective, as well as we have studied business objective are divided into three, that is economic objective, social objective or the individual objective, as well as we have started a topic, that is what are the role of the profit in the business. Okay, so the business is an economic activity, as we already know. So earning profit is the main objective of the any business enterprises. So but earning profit is not only a sole objective of the business, but it is a very important objective of every business. So there are various reasons for that purpose the business can earn the profit. So first one is survival, for the survival of the business. Second one is for the expansion and the growth of the business. Third one is a symbol or efficiency or an index of the performance. Reward for the bearing the risk, as well as helps to gain the reputation or the goodwill. Okay, so till here we have already discussed in the previous class. So now we are going to study what are the classification of the business activity. Okay, so business activity can be classified on the following, on the various basis. Okay, the common basis of classification is on the basis of function. Okay, जो भी बिजनेस एक्टिविटी होती है वो फॉलोइंग बेसिस में क्लासिफाइड होती हैं. तो जो कॉमन बेसिस है जिस पे क्लासिफिकेशन होता है वो होता है उनके फंक्शंस पे, कि जो उनके वो फंक्शनिंग कर रहे हैं. सो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन इज, ये जो क्लासिफिकेशन फंक्शन के बेसिस पे. सो ऑल द बिजनेस एक्टिविटी क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरी, कि जो भी सारी बिजनेस एक्टिविटी है वो टू ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड होती हैं. फर्स्ट वन इज़ इंडस्ट्री एंड द सेकेंड वन इज़ कॉमर्स. दो में डिवाइड होती हैं. सो बिजनेस एक्टिविटी इज़ डिवाइडेड इनटू टू, दैट इज़ इंडस्ट्री एंड द कॉमर्स. ओके, सो industry is further divided into two, that is primary industry, secondary industry and the tertiary industry. And primary industry is further divided into two, that is extractive industry or the genetic industry. And the secondary industry is divided into two, that is manufacturing industry or the constructive industry. Tertiary industry is divided into five, that is transport, banking, communication, insurance and the advertising. Now the business in the commerce. So commerce is divided into two, that is trade or the trade aids to trade, that means auxiliaries to trade, the things which is helpful in the trade, कि जो भी सारे helpful हैं trade में. So trade is divided into two, that is internal trade or the external trade. Internal trade is divided further in the two, that is retailer or this wholesaler. And the external trade is divided into three, that is export, import and the interport. Now the aids to trade is divided into five, that is transportation facility, communication, banking and finance, banking or finance. Next one is insurance and the advertising. Okay, so in this the business activities is divided into two, that is industries and the commerce. Then industry is divided into three, primary industry, secondary industry or the tertiary industry. So primary industry is divided into two, that is extractive industry or the genetic industry. Secondary industry is divided into two, that is manufacturing industry or the constructive industry. Tertiary industry is divided into five, that is transport, banking, communication, insurance and the advertising. Then commerce is divided into two, that is trade and the aids to trade. So trade is divided into two, that is internal trade or the external trade. Then internal trade is divided into two, that is retailer or the wholesaler. And external trade is divided into three, that is export, import and the interport. And aids to trade is divided into five, that is transport, communication, banking and finance, insurance and advertising.
Okay, so it is the basic functions of the business activity. So it is divided into two, that is industry and the commerce. Okay, now the next topic is what is the industry and what is the meaning and types. Okay, we are going to start this one, industry. So let's start. Industry refer to an activity which converts raw material into useful products. इंडस्ट्री क्या होती हैं, वो एक्टिविटी होती हैं जिसमें क्या करते हैं हम लोग, जो भी रॉ मटेरियल्स होते हैं, ओके, जो भी रॉ मटेरियल्स होते हैं दे आर कन्वर्टेड इनटू यूजफुल प्रोडक्ट. रॉ मटेरियल इनपुट्स को हम लोग क्या करते हैं, आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं. जो भी रॉ मटेरियल्स हैं उनको हम यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं. इंडस्ट्री इंक्लूड्स एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड द प्रोसेसिंग. ठीक है, इंडस्ट्री में क्या क्या रिलेटेड होता है, एक्टिविटीज़ की प्रोडक्शन करना, कमोडिटीज़ का प्रोडक्शन, एंड द प्रोसेसिंग एज वेल एज एक्टिविटीज रिलेटेड टू रियरिंग एंड द रिप्रोडक्शन ऑफ द एनिमल्स और अदर लिविंग स्पीसीज. ठीक है, इसमें क्या होता है कि प्रोडक्शन करना होता है और प्रोसेस करना एज वेल एज एक्टिविटी जो किससे रिलेटेड है कि जितने भी एनिमल्स होते हैं उनके रियरिंग मतलब उनका केयर करना, रिप्रोडक्शन जो हो रहा है एनिमल्स का और दी अदर लिविंग स्पीसीज, उससे सारे रिलेटेड भी होता है. मतलब प्रोडक्शन भी करना और जितने एनिमल्स हैं उनके रियरिंग करना, मतलब उनको केयर करना, उनकी देखभाल करना, रिप्रोडक्शन करना एनिमल्स का और अदर जो लिविंग स्पीसीज हैं उनकी भी टेक केयर और रिप्रोडक्शन में उनके प्रोसेस और उनकी एक्टिविटीज़ में क्या होना इंक्लूड. ओके, सो द पर्पस ऑफ इंडस्ट्री इज क्रिएट form utility by converting raw material into useful form of the finished product. ठीक है, जो पर्पस इंडस्ट्री का वो क्या है, क्रिएट फॉर्म यूटिलिटी, मतलब एक बेसिकली फाइनल आउटपुट में किसी भी रॉ मटेरियल इनपुट को कन्वर्ट करना बाय कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना किसमें, यूजफुल फॉर्म ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट. कोई भी ऐसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना जो डायरेक्टली यूजफुल हो. फिनिश्ड प्रोडक्ट मतलब जो डायरेक्टली कोई भी कंज्यूमर उसे कंज्यूम कर सके. द टर्म इंडस्ट्री इज ऑल्सो यूज टू रेफर टू अ ग्रुप ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग सिमिलर और द रिलेटेड गुड्स. ठीक है, जो टर्म इंडस्ट्री है वो उस इज ऑल्सो यूज टू रेफर टू अ ग्रुप ऑफ फर्म्स. इंडस्ट्री को हमें पता है कि हम लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी पता है कि पढ़ा है कि ग्रुप ऑफ फर्म्स आर कॉल्ड दी इंडस्ट्री. ठीक है, तो इंडस्ट्री को क्या है, इट इज़ दी ऑल्सो दी ग्रुप ऑफ फर्म्स होती हैं जो डिफरेंट स्मॉल फर्म्स होती हैं, उनको क्या है, उनको मर्ज करके एक इंडस्ट्री बनती है. ओके, तो प्रोड्यूसिंग द सिमिलर और द रिलेटेड गुड्स. जो ग्रुप ऑफ फर्म्स होती हैं, जो इंडस्ट्री होती हैं, वो क्या करती हैं, एक टाइप के ही गुड्स को, जैसे कोई टेक्सटाइल का है मतलब क्लोथ का प्रोडक्शन कर रहा है तो वो क्लोथ का ही प्रोडक्शन करेगा, कोई स्टील का कर रहा है, कोई आयरन का कर रहा है, तो वो एक टाइप के गुड्स को ही प्रोड्यूस करेंगे. और दी रिलेटेड गुड्स मतलब एक से वो दूसरा रिलेटेड हो. फॉर एग्जाम्पल, टेक्सटाइल इंडस्ट्री रेफर टू ऑल प्रोडक्शन यूनिट्स रिलेटेड टू क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग. सीमेंट इंडस्ट्री रेफर टू ऑल फर्म मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट. ठीक है, अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करेंगे तो उसमें जितनी भी फर्म्स होंगी वो क्या करेंगी, क्लोथ का मैन्युफैक्चर करेंगी. ठीक है, जितनी भी फॉर्म्स उसमें इंक्लूड होंगी उसमें सारा क्या है, क्लोथ का ही मैन्युफैक्चरिंग करेंगी. और जो सीमेंट इंडस्ट्री होंगी उसमें जितनी भी फॉर्म्स होंगी वो सीमेंट का ही मैन्युफैक्चर करेंगी. मतलब ग्रुप ऑफ फॉर्म्स आर कॉल्ड दी इंडस्ट्री. तो जो भी अगर डिफरेंट फॉर्म्स हैं वो क्या करेंगी, सेम काइंड और रिलेटेड प्रोडक्ट्स का ही प्रोडक्शन करती हैं. सो इंडस्ट्री में प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स और दी कैपिटल गुड्स. जो इंडस्ट्री होती हैं वो दोनों टाइप के गुड्स को प्रोड्यूस करती हैं, कंज्यूमर गुड्स भी प्रोड्यूस करती हैं और कैपिटल गुड्स भी प्रोड्यूस करती हैं. गुड्स सच एज ब्रेड, बटर, क्लोथ, रेडियो एक्सेट्रा आर दी कंज्यूमर गुड्स. जो गुड्स हैं लाइक ब्रेड, बटर्स और घर के जो भी हम इसेंशियल आइटम्स हैं जो यूज़ करते हैं, क्लोथ हो गया, रेडियो हो गया, घर पे सोप हो गया आपके यहाँ, शुगर हो गया, जो भी डायरेक्टली कंज्यूमर उनको कंज्यूम करता है, दैट दे आर कॉल्ड दी कंज्यूमर गुड्स. दीज गुड्स आर डायरेक्टली यूज बाय दी कंज्यूमर. ये सारे गुड्स क्या होते हैं, फिनिश्ड प्रोडक्ट होते हैं, मतलब फाइनल हैं, अब डायरेक्टली क्या है, कंज्यूमर इसको कंज्यूम करेगा. गुड्स सच एज मशीनरी, सीमेंट एक्सेट्रा आर कॉल्ड दी कैपिटल गुड्स. ठीक है, ये सारे क्या होते हैं,
लाइक दी गुड्स सच एज दी मशीनरी, सीमेंट, ये सारे क्या हैं, कैपिटल गुड्स होते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे गुड्स क्या हैं, फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। अब सीमेंट का हम लोगों ने अगर सीमेंट का बनाया, सीमेंट की इंडस्ट्रीज़ में अगर सीमेंट का प्रोडक्शन हुआ तो सीमेंट तो ऐसे ही रखने के लिए तो है नहीं, कोई डायरेक्टली उसको यूज़ तो करेगा नहीं। अब सीमेंट से क्या होगा, कोई भी बिल्डिंग्स हो गया, होम्स हो गया, टाउन्स हो गया, वो क्या होंगे, डेवलप होंगे। तो ये सारे क्या हो रहे हैं, फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज़ हो रहे हैं। तो इनको क्या कहते हैं, कैपिटल गुड्स। टू टाइप्स के गुड, कंज्यूमर गुड्स और दी कैपिटल गुड्स। इंडस्ट्री प्रोड्यूस करती कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर डायरेक्टली यूज्ड बाय दी कंज्यूमर, कि वो क्या है, डायरेक्टली कंज्यूमर को कंज्यूम करता है। कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड फॉर दी फर्दर इन दी प्रोडक्शन प्रोसेस, की प्रोडक्शन प्रोसेस में वो फिर यूज़ होते हैं। टू मेक दी यूज़फुल प्रोडक्ट, की कोई भी यूज़फुल प्रोडक्ट बनाने के लिए वो सारे क्या होते हैं, यूज़ होते हैं। इंडस्ट्रीज़ कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो क्या होती हैं, टू ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड होती हैं। ओके, वेट अ मिनट। ओके, सो प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड दी टर्शियरी इंडस्ट्री। ओके, टर्शियरी इंडस्ट्री में जो सारे आते हैं दे आर सेम एज दी एड्स टू ट्रेड, मीन्स ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ये सारे क्या हैं, ट्रेड के में भी हेल्पफुल होते हैं। ओके, सो नाउ द फर्स्ट वन इज प्राइमरी इंडस्ट्री। कि प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है, लेट्स स्टार्ट। प्राइमरी इंडस्ट्री इंक्लूड्स all those industries which are concerned with the extraction of the natural resources and reproduction of the living species. प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती हैं, उसमें वो सारी इंडस्ट्रीज आती हैं जो कंसर्न्ड होती हैं किससे, एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करना, उनको यूज़ करना, एंड द रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्पीसीज़। जो भी लिविंग स्पीसीज़ हैं लाइक बर्ड, एनिमल्स, उनके रिप्रोडक्शन से भी रिलेटेड होती हैं प्राइमरी इंडस्ट्री। सो दीज इंडस्ट्रीज आर कैन फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी। ये सारी इंडस्ट्रीज क्या हैं, फर्दर दो में डिवाइड होती हैं। फर्स्ट वन इज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री एंड द सेकेंड वन इज जेनेटिक इंडस्ट्री। सो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज आर दोज विच इन्वॉल्व द एक्सट्रैक्शन ऑफ द समथिंग फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज such as mineral from earth, fish from rivers, seas, timber from forest. The production of the extractive industry can be directly used or become the raw material for the other industry. ठीक है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो विच इन्वॉल्व द एक्सट्रैक्शन ऑफ समथिंग फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज। जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनसे वो कुछ भी एक्सट्रैक्ट करती हैं, मतलब कुछ उससे भी वो लेती हैं, रिमूव करती हैं। सच एज मिनरल फ्रॉम द अर्थ, अर्थ में जितने भी मिनरल्स हैं उनको लेना, ये नेचुरल रिसोर्स हो गया। फिश फ्रॉम द रिवर्स एंड द सीज़, ये भी क्या हो गया, नेचुरल रिसोर्सेज हो गया। कि रिवर और सीज़ जो होती हैं डिफरेंट, उनसे क्या होना, फ़िश को पकड़ना। फिर टिम्बर फ्रॉम द फॉरेस्ट, जो भी वुड हैं, लकड़ियाँ हैं, वो फॉरेस्ट से लेना। तो फॉरेस्ट और ये सब क्या हो गया, नेचुरल रिसोर्सेज से हम जो भी कुछ भी एक्सट्रैक्ट करते हैं, they all are related to the extractive industries. So the product of extractive industry can be directly used. जो प्रोडक्ट हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के वो डायरेक्टली भी यूज़ हो सकते हैं और बिकम द रॉ मटेरियल फॉर द अदर इंडस्ट्री। और क्या है, ये रॉ मटेरियल भी किसी अदर इंडस्ट्रीज़ के लिए हो सकती हैं, मतलब इनको हम डायरेक्टली यूज़ भी कर सकते हैं और ये फर्दर प्रोडक्शन के लिए कोई भी डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ एज अ रॉ मटेरियल भी इनका यूज़ कर सकती है। ओके, कुछ भी हम एक्सट्रैक्ट कहाँ से कर रहे हैं, फ्रॉम दी नेचुरल रिसोर्सेज। कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज है, हम कुछ भी रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, दीज फॉर दैट दे आर यूजिंग दी डिफरेंट इंडस्ट्रीज़। और इस सारी इंडस्ट्रीज़ में क्या है, इन्हीं सारे का क्या होता है, यूज़ होता है। ओके, सो इट इज़ कॉल्ड दी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। नेक्स्ट वन इज़ जेनेटिक इंडस्ट्री। कि ये जेनेटिक इंडस्ट्री क्या होती हैं, the industries involved in the activities of the rearing and the breeding of the living organism। ठीक है, जो ये इंडस्ट्री जो क्या है, किससे रिलेटेड होती हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, एनिमल्स, प्लांट, दैट इज़ बर्ड्स एंड प्लांट एनिमल्स। तो इन सारी इंडस्ट्रीज़ के रियरिंग करती है, मतलब
उनका टेक केयर करना, ब्रीडिंग करना, उनके डिफरेंट टाइप के प्रोडक्शन करना, इन सारी एक्टिविटीज़ से जो रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जो इन सारे का क्या करती हैं, वर्क करती हैं, दे आर कॉल्ड एज दी जेनेटिक इंडस्ट्री, आर नोन एज जेनेटिक इंडस्ट्री। कि वो बर्ड्स का, प्लांट का, एनिमल्स का क्या करती हैं, रियरिंग मतलब टेक केयर करना उनका, फिर उनका रिप्रोडक्शन से रिलेटेड उसके जो भी प्रोडक्ट हैं उनको सोल्ड आउट करना, उनका प्रोडक्शन करना, तो ये सारे क्या होते हैं, जेनेटिक इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल रियरिंग ऑफ द कैटल फॉर द मिल्क, ठीक है, किसी भी कैटल का केयर करना किसके लिए, मिल्क के लिए। डेयरी फार्म्स जो होते हैं, पोल्ट्री फार्म्स जो होते हैं, रियरिंग ऑफ प्लांट्स का केयर करना इन दी नर्सरी मतलब जो भी प्लांट होते हैं ना, सैपलिंग जिसको बोलते हैं, छोटे छोटे जो प्लांट होते हैं उनका क्या होता है, एक नर्सरी में जो उनका रियरिंग करना। ग्रोइंग फिश इन पॉन्ड्स, इसको क्या बोलते हैं, पिसीकल्चर बोलते हैं, ठीक है, जो पॉन्ड्स जो भी फिश का प्रोडक्शन करता है, जो उस एक्टिविटी में रिलेटेड होता है। तो ग्रोइंग फिश इन पॉन्ड्स में जो फिश को ग्रो करना आर इंक्लूडेड इन दी जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री में वो सारे आइटम्स आते हैं जो हम लोग किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या करते हैं, रियरिंग और ब्रीडिंग करना। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में वो सारे आते हैं कि जो भी हम एक्सट्रैक्ट कहाँ से कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्स से कर रहे हैं। ओके, सो इट इज़ योर प्राइमरी इंडस्ट्री, इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू, दैट इज extractive industry as well as the genetic industry. Now the next one is secondary industry. So the secondary industry makes use of the product which are extracted and produced by the primary industry as their raw material and produce finished goods. For example, mining of iron ore is done in the primary industry, but steel manufacturing is done in the secondary इंडस्ट्री। ओके, तो ये क्या कह रहा है कि जो सेकेंडरी इंडस्ट्री होती हैं ये क्या करती है, मेक यूज़ ऑफ द प्रोडक्ट का यूज़ करती हैं विच आर एक्सट्रैक्टेड एंड प्रोड्यूस बाय द प्राइमरी इंडस्ट्री। जो प्राइमरी इंडस्ट्री से एक्सट्रैक्ट किया गया, रिमूव किया गया है और एज वेल एज प्रोड्यूस किया गया है, उनको ये कैसे लेती हैं, एज देयर रॉ मटेरियल। जो भी प्राइमरी इंडस्ट्री के प्रोडक्ट हो गया वो इनके लिए रॉ मटेरियल एंड प्रोड्यूस द फिनिश्ड गुड। फिर ये क्या करती हैं, उन रॉ मटेरियल का एक फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल माइनिंग ऑफ आयरन ओर इज़ अ प्राइमरी इंडस्ट्री, ठीक है, कोई भी आयरन ओर की माइनिंग करना, आयरन ओर को क्या करना, माइंस के थ्रू निकालना, ये क्या हो गया, एक प्राइमरी इंडस्ट्री हो गया, क्योंकि ये किस में आएगा, आपका एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में। एंड बट स्टील मैन्युफैक्चरिंग इज़ डन इन द सेकेंडरी इंडस्ट्री, ठीक है, आयरन वहाँ से निकाल लिया और अब स्टील का जो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे वो किस में आएगा, आपका सेकेंडरी इंडस्ट्री में। ओके, सो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज आर divided into two, that is manufacturing industry and the construction industry. Now what is the manufacturing industry? These industries are engaged in the process of conversion of the raw material और semi finished goods into the finished good. ये सारे इंडस्ट्रीज़ वो गुड्स इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो इंगेज किस में होती हैं कि वो रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश्ड गुड्स को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करती हैं। जितने भी रॉ मटेरियल्स हो गए, जितने भी सेमी फिनिश मतलब वो पूरे फाइनल फिनिश्ड गुड्स ना होके उन सारे रॉ मटेरियल को वो क्या करती हैं, फिनिश गुड में कन्वर्ट करती हैं। दीज इंडस्ट्री क्रिएट फॉर्म यूटिलिटी बाय चेंजिंग द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल टू फिनिश्ड प्रोडक्ट, कि वो अपने उसको फॉर्म को क्या करती है, कन्वर्ट करती हैं। कैसे कन्वर्ट करती हैं कि जो भी रॉ मटेरियल है उसको वो फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल टिम्बर इज़ कन्वर्टेड इनटू फर्नीचर, जो भी वुड होती है, लकड़ियाँ होती हैं, वो फर्नीचर में कन्वर्ट होगी। एंड आयरन इंटू स्टील, आयरन को क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे स्टील में। शुगर केन इंटू शुगर, शुगर जो केन गन्ना जो होता है उसको शुगर में कन्वर्ट करना। एंड कॉटन इंटू क्लोथ, ठीक है, जो भी सेमी फिनिश्ड गुड्स हैं, रॉ मटेरियल है, उनको वो फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करती हैं। सो इट इज़ कॉल्ड द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। नाउ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ गुड। जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है वो भी टू टाइप्स के गुड्स को प्रोड्यूस करती हैं। ओके, सो हियर इट इज़ कंज्यूमर गुड्स और द इंडस्ट्रियल गुड। टू टाइप्स के गुड्स को प्रोड्यूस की, कंज्यूमर गुड और इंडस्ट्रियल गुड। कंज्यूमर गुड्स विच कैन बी डायरेक्टली कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर आर नोन एज कंज्यूमर गुड्स। एज वी अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था
कंज्यूमर गुड और कैपिटल गुड्स। भाई कैपिटल गुड्स मीन्स इंडस्ट्रियल गुड्स, कि जो गुड्स क्या है डायरेक्टली कंज्यूम कौन कर रहा है, कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है, आर नोन एज कंज्यूमर गुड्स। दीज गुड्स आर यूज्ड फॉर डे टू डे कंजप्शन। ये सारे जो गुड्स हैं वो डे बाय डे हर दिन क्या है कंजप्शन में यूज़ होते हैं। लाइक एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल क्लोथ, ऑयल, सोप, ब्रेड एक्सेट्रा, कि जो हम अपनी डेली लाइफ में क्या करते हैं डिफरेंट कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे हैं, दे आर कॉल्ड एज दी कंज्यूमर गुड्स। इंडस्ट्रियल गुड्स, द गुड्स विच आर प्रोड्यूस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग कंज्यूमर गुड्स। ये सारे गुड्स जो हेल्प करते हैं फॉर दी मैन्युफैक्चर करने के लिए कंज्यूमर गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो भी गुड्स का यूज़ होता है, यूज़ करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्रियल गुड्स। लाइक मशीनरी, हम मशीन का यूज़ करके फाइनल कोई भी गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, सो वो क्या है डायरेक्टली कंज्यूमर उनको यूज़ करता है। इक्विपमेंट, टूल्स, ये सारे क्या हैं, इन सारे का हेल्प लेके हम कोई भी कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, विच आर रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर दी कंज्यूमर गुड्स। जो ये सब क्या है एकदम रिक्वायर्ड हैं फॉर दी मैन्युफैक्चरिंग दी कंज्यूमर गुड्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। अब क्या है, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या है, वो फॉलोइंग टाइप्स की होती हैं। ओके, देखिए ये देखिए, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं वो टू टाइप के गुड्स को प्रोड्यूस करती हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री टू टाइप के गुड्स को प्रोड्यूस करती हैं, जिसमें आपका क्या था, कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करती हैं और इंडस्ट्रियल गुड्स को। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के फॉलोइंग टाइप्स। ओके, फॉलोइंग टाइप्स में क्या है, लेट्स सी। फर्स्ट वन इज एनालिटिकल इंडस्ट्री। In analytical industry, the basic raw material is broken into different parts to produce the finished product. ठीक है, एनालिटिकल इंडस्ट्री में क्या होता है कि जो भी रॉ मटेरियल्स होते हैं, जो हम लोग कोई भी कमोडिटी का प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं, दे आर ब्रोकन इनटू द डिफरेंट पार्ट। उनको स्मॉल पार्ट्स में हम ब्रोक करते हैं टू प्रोड्यूस द फिनिश्ड गुड्स, कि कोई भी फिनिश्ड गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, crude oil is processed and many finished products such as petroleum, diesel, kerosene oil, gasoline are manufactured। ठीक है, जो भी क्रूड ऑयल होता है, कच्चा तेल जिसको बोलते हैं, उसको हम लोग प्रोसेस करते हैं और उसी प्रोसेस में हम लोग उसको डिफरेंट में डिवाइड कर देते हैं। लाइक पेट्रोलियम उसी से निकालते हैं, डीजल, केरोसिन ऑयल, गैस जो होती है उनको करते हैं आर डी मैन्युफैक्चर। उसी के थ्रू क्या होती है मैन्युफैक्चर, कि एक रॉ मटेरियल को हम लोग डिफरेंट उसमें से प्रोसेस के थ्रू डिफरेंट अलग अलग गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। ये होता है आपका एनालिटिकल। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज सिंथेटिक। इन सिंथेटिक इंडस्ट्री, 2 or more materials are mixed together and to produce the some new product। कि 2 और 3 और 4 प्रोडक्ट क्या होंगे, एक साथ मिलेंगे और ये क्या करेंगे, एक नए प्रोडक्ट को बनाएंगे। उसमें क्या हो रहा था कि एनालिटिकल में हो रहा था, एक प्रोडक्ट क्या था वो डिवाइड हो रहा था तो बहुत सारे बन रहे थे। ठीक है, सिंथेटिक में क्या है कि बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, वो मिलके क्या करेंगे, एक प्रोडक्ट को बनाएंगे, जस्ट ऑपोजिट। ओके, सो इन सिंथेटिक इंडस्ट्री 2 or more material are mixed to manufacture some new product। कुछ न्यू प्रोडक्ट को बनाते हैं, लाइक केमिकल्स आर मिक्स टू प्रोड्यूस सोप, पेंट्स, कॉस्मेटिक्स एक्सेट्रा। ठीक है, डिफरेंट केमिकल्स मिलते हैं और वो क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट को बना रहे हैं, एक सोप को बना रहे हैं या पेंट में बना रहे हैं। पेंट में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, तो डिफरेंट प्रोडक्ट मर्ज होके वो एक कमोडिटी को प्रोड्यूस करें। एनालिटिकल में क्या है, एक कमोडिटी क्या हो रही है, दूसरे बहुत ज़्यादा उसका वो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ब्रोक हो रही है और वो क्या करी, अलग अलग चीज़ को बना रही, जैसे हम लोगों ने क्रूड ऑयल का एग्जाम्पल लिया। नेक्स्ट वन इज प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। सो इन प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, द रॉ मटेरियल इज प्रोसेस्ड थ्रू द वेरियस स्टेज ऑफ प्रोडक्शन एंड देन फिनिश्ड गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में क्या होता है कि जो भी रॉ मटेरियल्स होते हैं, मतलब जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं, वो प्रोसेस के थ्रू रॉ मटेरियल्स प्रोसेस थ्रू द वेरियस स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। कि कोई भी रॉ मटेरियल क्या है, वो एक अलग अलग स्टेज पे जाके एक गुड्स को बनाता है। ठीक है, हमें पता है कि बहुत सारी गुड्स का क्या है, डायरेक्टली तो वो कोई चीज़ चेंज नहीं हो जाती, बहुत वेरियस स्टेज पे होके जाना पड़ता है। तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या होता है, इन प्रोसेसिंग इंडस्ट्री
द रॉ मटेरियल इज़ प्रोसेस थ्रू द वेरियस स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, वो बहुत सारे स्टेजेस प्रोडक्शन के को गो थ्रू करता है, एंड देन फिनिश गुड्स आर मैन्युफैक्चर, फिर जाके कोई भी फिनिश गुड्स प्रिपेयर होती है। फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या है कि हम लोग को क्या चाहिए, कॉटन चाहिए। अब कॉटन को क्या है, हम लोग चेंज करते हैं, कॉटन को पहले हम लोग क्लोथ, शर्ट और ये बना के तब जाके टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या है, डिफरेंट। वैसी आयरन एंड स्टील है, शुगर इंडस्ट्री है, शुगर इंडस्ट्री में पहले हम लोग को शुगर केन चाहिए, फिर वो कन्वर्ट हो के बहुत सारे स्टेज से गो थ्रू करके, बहुत सारे स्टेज के थ्रू प्रोसेस होके एक मैन्युफैक्चर गुड्स को प्रोड्यूस करती है। ओके, सो ये होता है प्रोसेसिंग। नेक्स्ट वन इज असेंबलिंग इंडस्ट्री। So in assembling industry, various finished goods are combined to produce a new finished product. Assembling industry में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे जो ऑलरेडी फिनिश्ड हैं, वो बन चुके हैं, उनको यूज़ करते हैं एक नया फिनिश गुड्स को प्रिपेयर करने के लिए। कि हम लोग क्या किए, बहुत सारे अभी हम लोग ने पढ़े थे कि हम लोग बहुत सारे मटेरियल्स को, रॉ मटेरियल को यूज़ करते हैं टू प्रोड्यूस द फिनिश्ड गुड्स। अब असेंबली इंडस्ट्री में क्या है कि जो बहुत सारे फिनिश्ड गुड्स हमने प्रिपेयर कर लिया, उनको अब हम कंबाइन करेंगे, उनको हम सारा कंबाइन करके एक न्यू फिनिश्ड गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे। फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंप्यूटर्स। अब कंप्यूटर्स में उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, माउस हो गया आपका, डेस्कटॉप हो गया आपका, कीबोर्ड हो गया, तो इनका क्या है, अलग अलग प्लास्टिक का, उनके अलग अलग चिप्स हैं, जो चिप लगती है वो अलग अलग उनका प्रोडक्शन होगा, एंड देन एक नया बन रहा है क्या, कंप्यूटर। टेलीविज़न हो गया, टेलीविज़न में भी हर एक अलग अलग पार्ट हो गया, आयरन का पार्ट हो गया, प्लास्टिक का, ऐसे ऐसे बहुत सारे पार्ट हैं, बहुत टाइप की चिप हैं, बहुत लेयर्स हैं, तो अलग अलग वो फिनिश गुड्स प्रिपेयर हुए, एंड देन एक फाइनल फिनिश गुड प्रोड्यूस हुआ। देन वॉचेस जो हो गए, ऑटोमोबाइल्स हो गए, कार्स हो गए, कार हो गया, ये सब बाइक्स हो गए, ये सब का क्या है, अलग अलग जगह इनका एक फिनिश गुड्स बनता है, फिर एंड देन ये एक फाइनल प्रोडक्ट इसका प्रिपेयर हो जाता है। ओके, सो इट इज़ योर असेंबली इंडस्ट्री। सो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, so we have discussed that is primary industry and the secondary industry. In the primary industry we have discussed that is it is of two types, that is extractive industry and the genetic industry. And then secondary industries are divided into two, that is manufacturing industry and the construction industry. Manufacturing industries are producing two kinds of products, that is consumer goods or the industrial goods. Manufacturing industries are of following types, like analytical industry, synthetic industry, processing industry, assembly industry. Now the next topic is next part of the secondary industry, because secondary industries are of two types, that is manufacturing, as we already discussed. Now the next one is construction industry. Okay, these industries are concerned with the construction of buildings, dam, roads, etc. ये सारी इंडस्ट्रीज किससे कंसर्न होती, किससे रिलेटेड होती हैं, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना, डैम का कंस्ट्रक्शन करना, रोड्स का कंस्ट्रक्शन करना। दीज इंडस्ट्री यूज़ द प्रोडक्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ये सब इंडस्ट्री क्या करती हैं, जो भी प्रोडक्ट होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का, उनको यूज़ करती हैं, सच एज सीमेंट्स, आयरन, स्टील, लाइम एक्सेट्रा। ठीक है, डिफरेंट फिनिश गुड्स का जो भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इंडस्ट्रियल गुड्स प्रोड्यूस करी हैं, उन सारे गुड्स का ये यूज़ करती हैं और कुछ भी कंस्ट्रक्ट करती हैं, लाइक बिल्डिंग्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल, रोड, डैम एक्सेट्रा। द यूनिक फीचर ऑफ दिस इंडस्ट्री इज़ दैट देयर प्रोडक्ट कांट बी ट्रांसफर्ड और शिफ्टेड टू द मार्केट। अब इनका ये बहुत यूनिक फीचर ये है कि ये जो प्रोडक्ट क्या है, प्रिपेयर हो गए, ये जो प्रोडक्ट दैट देयर प्रोडक्ट इन इंडस्ट्रीज़ का जो प्रोडक्ट है, दे कांट बी ट्रांसफर और शिफ्टेड टू दी मार्केट। अब ये सारे प्रोडक्ट हम मार्केट में इनको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, दे आर कंस्ट्रक्टेड एंड रिमेन एट द फिक्स साइट ओनली। अब हम उठा के आर्मी पब्लिक स्कूल को हम ये कैंटोनमेंट से लंका तो नहीं पहुंचा सकते ना, बिकॉज ये क्या है, जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज हैं, दे आर फिक्स एट देयर साइट, वो क्या होती है, अपनी जगह पे फिक्स होती है, इनको हम मार्केट तक नहीं पहुँचा सकते, इनको हम मूव और ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ओके, सो
here we are seeing that the industries. So industries is divided into three, that is primary, secondary and the tertiary. Primary is divided into that is genetic and the extractive. In the genetic industry, the breeding of the cattle and birds, pisciculture, dairy farming and the nursery. Pisciculture means the growing of the fishes. Extractive industries में क्या होता है, माइनिंग होता है, फिशिंग as well as the timber cutting. In the secondary industry, it is divided into two, manufacturing and constructive. So analytical, as we already discussed, what is analytical, synthetic, assembly and the processing. In the constructive industry, road construction, dam construction और the bridge construction. इनमें क्या होता है, रोड का कंस्ट्रक्शन हो गया, डैम का कंस्ट्रक्शन हो गया और the bridge construction. Okay. In the tertiary industry, it is